Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to talk on a very important topic, that is the hostel. So I know friends, lots of students and I think almost 80 to 90% student will take admission in this round, that is the round 2. So if you are a WBJE 2023 candidates, COMEDK candidates or JEE main candidates or any candidates, you are basically simply if you are going to the college, then this video gonna very informative to you regarding the hostel. I will tell you the reality or whether should you opt for the hostel or not, या means hostel लेना चाहिए या ना लेना चाहिए. Okay, so I am basically sharing my personal experience as well as I have talked to lots of students and according to that I am saying this experience. Okay, you can basically think according to that. आपको मैं सब कुछ reality बता दूंगा. According to that you can decide that whether you should choose the hostel or not. Okay, either आप boys हैं या girls है guys. Okay, so before moving to the video guys, must support my channel for getting such informative content, because in this channel you will not get only help related to counseling, but after getting on college too, such as providing notes, various important tips and tricks, personal guidance and various important things. So must support and subscribe the channel. Okay, also try to share this video with more number of candidates so that they got help from my video. So let us come to the point, that is the hostel guys. Okay, so first of all मैं बता दूं कि if you are girls, okay, if you are girls and basically your college is situated in a basically particular city other, then yeah you can go for the basically hostel or means you can't go for the hostel, means आप hostel जा भी सकते नहीं जा सकते depending on you, but most of the chance I will suggest that must go for the hostel, because in hostel there are a lot of security and other important things provided. But yeah अगर आपको लगता है कि बारी में रह लूंगी और सब कुछ ठीक रहेगा, देन यू कैन टेक दैट. ओके, दिस इज बेसिकली जस्ट आई एम टॉकिंग टू द गर्ल्स. इफ यू आर अ गर्ल्स कैंडिडेट्स, देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन बेसिकली चूज हॉस्टल और नॉट. ओके, बट इफ योर कॉलेज इज बेसिकली सिचुएटेड इन फार फ्रॉम द सिटी, सच एज द आपको कह सकते हैं एओटी कॉलेज हो गया या कह सकते हैं कोई अदर कॉलेज, बीसी वाई अदर कॉलेज, अगर सिटी से ज़्यादा दूर कॉलेज है और आपको अगर लग रहा है कि यार मुझे बाहर लेना ठीक नहीं रहेगा, देन यू कैन श्योरली गो फॉर द हॉस्टल. दैट्स ऑल. ओके, आई थिंक दैट यू आर क्लियर. नाउ कमिंग टू द बॉयज कैंडिडेट्स. ओके, also these are the parameter also valid for the boys as well as girls candidate too. First of all, discipline guys. Okay, so if you wanna discipline life in all these 4 year, आप अगर चाहते कि मैं डिसिप्लिन रहूं, मैं बस पढ़ाई फोकस करूं, एक्स्ट्रा वगैरह पे नहीं करूं, then you can certainly go for the hostel guys, because almost every hostel either you are basically going to IIT, NIT or any other things, but IIT NIT वगैरह मिला तो वो सब वही हॉस्टल तो लेंगे ही आप लोगों के, and that is good too. But ये नॉर्मल कॉलेज बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज सच है WBA कॉलेज, कॉमेडी कॉलेज. सो इफ यू वांट लिव इन अ डिसिप्लिन लाइफ, आपको अगर कोई चिल वगैरह नहीं करना है, बर्थडे पार्टी नहीं मनाना, ये सब नहीं करना, देन सर्टेनली यू कैन चूज फॉर द हॉस्टल. क्योंकि हॉस्टल में बहुत सारा डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा. सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है कि आप आफ्टर 5 इवनिंग और आफ्टर 6 PM इवनिंग आप बाहर कॉलेज से नहीं जा सकते हैं. जाएंगे हर बार आपको साइन करना पड़ेगा. ये तो कुछ लोग किन्हीं लोग को लग सकता है कि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बेसिकली लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि भाई अब आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा एंजॉय कर सकते हैं. बट या इफ यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन आउटसाइड हॉस्टल टू. क्योंकि मैंने भी हॉस्टल से बाहर ही में रह रहा हूँ एंड स्टिल आई हैव नॉट बेसिकली विजिटेड टू एनी यू कैन से प्लेसेस. ओके, मैंने सिर्फ 2 साल हो गया, मैंने 2 से 3 जगह ही बस मैंने घुमा है. ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इफ यू हैव सेल्फ कंट्रोल, देन यू कैन चूज दैट. ओके, मैं अपना ये बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मैं दे रहा हूँ गाइडेंस दैट या इफ यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन, देन यू कैन बेसिकली चूज द आउटसाइड थिंग्स. अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप हॉस्टल ना ही ले, ठीक ही रहेगा. बाहर ही ले, बाहर भी आप डिसिप्लिन में रहेगा, दैट ऑल थिंग. बट आपको अगर लग रहा है भैया मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ओके, आई हैव नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, देन यू कैन सर्टेनली चूज हॉस्टल. बट रिमेंबर गाइस, हॉस्टल में बहुत सारा आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा टू दैट. Coming to next important, that is the food quality guys. So this is the harsh reality of almost every hostel except IIT and NIT, that food quality in most of the hostel is not good. Either you can talk AOT, BP Poddar का तो hostel है ही नहीं, Heritage, other important college, most of the college, मैं सबका नहीं कर रहा हूँ भाई, most of the college have not much more food quality. Also आपको देखेंगे कि variety of foods नहीं मिलेगा. ओके, यानी आपका फिक्स क्वांटिटी में फूड मिलेगा कि या आज मुझे ये रोटी सब्जी मिल रहा है, ट्यूसडे को वेडनेसडे को मछली या कुछ और मिल रहा है, देन यू विल बेसिकली फॉलो सेम पैटर्न. ओके, आपको हर एक वीक सेम पैटर्न मिलेगा, देन आपको थोड़ा बोरडम फुल होगा. बट इफ यू हैव टेक द आउटसाइड पीजी, देन यू कैन अकॉर्डिंग टू योर बेसिकली नीड डिजायर यू कैन बेसिकली सर्व or you can take lots of food quality. Okay, so according to that you can do that. Okay, but most of the college hostel where guys have not much more food quality. Okay, so according to that आपको अगर फूड वगैरह खाना वगैरह अच्छा चाहिए, देन गो फॉर द पीजी और मेस, दैट विल गुड फॉर यू. ओके, स्पेशली एओटी वगैरह कॉलेज में आ रहे हैं तो सबका हॉस्टल मीन्स मैंने कुछ बच्चों से बात किया तो वो लोग कह रहे थे कि ज़्यादा कुछ नहीं है. या फिर अदर कॉलेज में बात करूँ, सॉरी अदर कॉलेज जैसे बीसी और अदर कॉलेज का, वो लोग को बोल रहे थे भाई हॉस्टल कोई खास नहीं है, खाना नहीं है. और वो हर एक कॉलेज में होता है. मैं इसमें कॉलेज का भी दोष नहीं दूंगा, बिकॉज देयर आर वेरियस थिंग्स. ओके, क्योंकि कुछ कॉलेज अदर से कॉपरेशन के लिए करते तो मीन्स कुछ कॉलेज का हॉस्टल अच्छा है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज आर नॉट फूड क्वालिटी. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड.
Now this is very important thing, that is the high fee. Almost every college hostel have high fee, और आपको ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज में कॉशन डिपॉजिट 10 से 15,000 देना पड़ेगा. बिसाइड दैट यू हैव टू पे ऑलमोस्ट 36-40,000 to 50,000 तक भी हॉस्टल में आपको देना पड़ सकता है. सो आप देख सकते हैं बहुत लोग को हाई फी देना मीन्स सफिशियंट नहीं होगा. ये भी कारण था मैंने हॉस्टल नहीं लिया था, क्योंकि एक बार में भाई मुझे 40,000 मिल रहा था. ओके, सब आप कर सकते हैं AOT वगैरह में 36-37,000 एक बार लेना है. तो बहुत सारे पेरेंट्स को ये थोड़ा बोर्डम बेसिकली कर सकते हैं कि हाई प्रेशर हो जाता है. ओके, फी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चा एडमिशन भी ले रहा है, हाई फी भी दे रहा है, तो मोर देन 1 लाख और 1,50,000 तक चला जाता है. सो कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज दैट. ओके, सो अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं, देन आई विल सजेस्ट गो विद द बेसिकल PGMS, क्योंकि कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देने को नहीं मिलेगा. ओके, अगेन सेइंग गाइस, फॉर गर्ल्स कैंडिडेट्स यू कैन बेसिकली also apply all these term and condition too. Okay, so I hope video was informative to you. If you have doubt related to anything, feel free to ask here. I'm here to help you. और जरूर यहाँ पर कमेंट करें which college you have got, and if you have any doubt related to anything, feel free to ask here. आप हमको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं. I will try to reply as soon as possible to any doubt. Till then, bye bye. Meet you in the next video. जय हिंद.